السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں قاضی گل محمد قادری، شہر قاضی مہگاؤں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اونلی اسلامک ٹاپک۔ محترم حضرات، آج میں آپ کی بارگاہ میں فاتحہ دینے کا سب سے آسان طریقہ، سب سے سرل طریقہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں، جو لوگ فاتحہ نہیں دے پاتے ہیں، نظر و نیاز نہیں دے پاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سب سے آسان طریقہ فاتحہ دینے کا میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کو پورا لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو فاتحہ دینے کا طریقہ پورا صحیح سے سمجھ آ جائے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ فاتحہ دینے کا سب سے آسان اور سب سے چھوٹا طریقہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل اونلی اسلامک ٹاپک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر بھی کریں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ فاتحہ دینے کا سب سے آسان اور سب سے سرل طریقہ کیا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مان لیجئے کسی شخص کو جو ہے بہت ساری قرآن پاک کی سورتیں جو ہے یاد نہیں ہیں، لیکن ہم جو ہیں آپ کو سب سے آسان طریقہ آج بتانے والے ہیں۔ فاتحہ میں بہت ساری سورتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، بہت سے طریقے بھی ہیں جس طرح لوگ دعائیں کرتے ہیں، جو ہے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، اور الگ الگ طریقہ ہے، لیکن میں جو ہوں آج آپ کو سب سے آسان طریقہ بتانے والا ہوں، سب سے سرل طریقہ۔ اب اس میں آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے آپ نے درود پاک پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو درود پاک آتی ہے تو آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اگر نہیں آتی ہے درود پاک تو میں آپ کو درود پاک بھی بتا دوں، یہ بھی دنیا کا سب سے چھوٹا درود پاک ہے۔ حضور کا نام لینا ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنا کہنا ہے، یہ درود پاک ہو گیا۔ اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو درود پاک آتا ہے تو وہ 3 بار پڑھ لے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف، جو کہ ہر شخص کو یاد ہوتی ہے، اور جس کسی کو یاد نہ ہو تو وہ یاد کر لے۔ اب اس سے بھی آسان تو ہو نہیں سکتا۔ کیا کرنا ہے؟ 3 بار درود پاک، اگر یاد نہیں ہو تو یہ چھوٹا درود پاک جو میں نے بتایا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ درود پاک ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، یا آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنے؟ 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے لاسٹ میں 3 مرتبہ درود شریف پھر پڑھنا ہے۔ یہ سب سے چھوٹا طریقہ بتا رہا ہوں۔ پڑھنے کو تو آپ جو ہے اور بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، وہ الگ ہے، جن کو آتی ہیں وہ تو پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن جن کو نہیں آتا ہے طریقہ، سب سے چھوٹا طریقہ یہ ہے۔ کیا ہے؟ 3 بار درود پاک، 7 مرتبہ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ، اور پھر 3 بار درود پاک، یعنی پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور بیچ میں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آپ کو کتنے بار؟ 7 مرتبہ، اور لاسٹ میں پھر یعنی آگے پیچھے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور بیچ میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت کرنی ہے۔ اب آپ نے تلاوت کر لی، تلاوت ہو چکا ہے۔ اب مان کے چلیے آپ کو نیاز دینی ہے محرم کی، کربلا والوں کی نیاز دینی ہے۔ اب نیاز آپ نے سیکھ لی ہے محرم کی، اب کوئی دلوا رہا ہے 12ویں شریف کی یا 11ویں شریف کی، تو جو ہے پڑھا نیاز کسی کی بھی ہو، یعنی یا محرم کی نیاز ہو، یا 11ویں شریف کی نیاز ہو، یا 12ویں شریف کی نیاز ہو، یا کونڈوں کی نیاز ہو، کوئی بھی نیاز ہو، لیکن آپ کو پڑھنا صرف یہی ہے۔ 3 بار درود پاک، 7 بار الحمد شریف، اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک۔ لیکن اس کے جو بخشنے کا طریقہ ہوگا وہ الگ الگ ہوگا، یعنی محرم کی نیاز دے رہے ہیں تو الگ طریقے سے بخشا جائے گا، 12ویں شریف کی نیاز ہے تو الگ طریقے سے، 11ویں شریف کی ہے تو الگ طریقے سے بخشا جائے گا۔ اور اگر ہمارے کسی گھر کے مرحوم کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے اگر فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو الگ طریقے سے بخشا جائے گا۔ لیکن
पढ़ना सिर्फ इतना ही है, क्योंकि हम सबसे आसान तरीका सीख रहे हैं। तो आपने ये पढ़ लिया, आप सीखते चलिए, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। हम शुरुआत करते हैं मुहर्रम की नियाज से। अब हम मुहर्रम की नियाज दे रहे हैं। हमने ये पढ़ लिया, 3 बार दुरूद पाक पढ़ा, 7 बार अलहम्दु शरीफ पढ़ी, फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लिया। ये पढ़ लिया, नजर न्याज खाना वगैरह जो भी सामने रखा हुआ है ईसाले सवाब के लिए, ठीक है। तो अभी हम फातिहा देने के तरीके पर फोकस करेंगे, गौर करेंगे पढ़ने के ऊपर, ठीक है। तो हमने जो है फातिहा देना स्टार्ट किया, पढ़ लिया, जो मैंने बताया वो सब आप पढ़ चुके हैं। अब आपने करना क्या है, तिलावत करने के बाद आपने हाथ उठाने हैं इस तरीके से। हाथ उठाने के बाद आपने दुआ करनी है, ए अल्लाह। इसको आप हो सके तो कॉपी पर लिख लीजिए या अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। पढ़ने के बाद क्या करना है आपको, या अल्लाह, मैंने जो कुछ कुरान पाक की सूरत को तिलावत किया, दुरूद पाक पढ़ा, और इसके अलावा जो लोग फातिहा दिलवा रहे हैं उन लोगों ने भी अगर कुछ पढ़ा हो तो बताते हैं ना कि 3 कुरान या 10,000 कलमे या कुछ भी वगैरह वगैरह। तो आपने किस तरह बोलना है कि ए अल्लाह, जो कुछ मैंने कुरान पाक की तिलावत की और उसके अलावा इन लोगों ने पढ़ा, और ये जो नजर न्याज का खाना है, तबर्रुक है, खुशबू है, इन तमाम सारी चीज़ों का सवाब नजराने के तौर पर सबसे पहले मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। या अल्लाह तो कबूल फरमा ले, इस तरीके से कहना है। ये हो गया, आपने हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। इसी तरह अब हुजूर की बारगाह से आप जो है, हुजूर की 11 बीवियां हैं, हुजूर के बेटा बेटी हैं, हुजूर के वालिदैन करीमैन हैं, तो उनकी बारगाह में पेश करते हैं। ए अल्लाह, हुजूर की बारगाह से हुजूर के वालिदैन करीमैन की बारगाह में पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा ले। हुजूर के बेटा बेटियों की बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह, नजर व नियाज का सवाब, फातिहा का सवाब हुजूर के वालिदैन करीमैन, हुजूर के बेटा बेटी और हुजूर के सदके से जितने नबी इस दुनिया में आए सारे नबियों की बारगाह में कबूल फरमा ले। और नबी के बाद कौन, सहाबा, सहाबियात, ताबईन। तो इस तरह कहना है, या अल्लाह, नबी के वसीले से जितने सहाबा दुनिया में रहे, मौला तमाम सहाबा, तमाम सहाबियात, ताबईन, खुलफाए राशिदीन, इस तरह आप अर्ज करें, खुलफाए राशिदीन की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। उनके बाद अब करबला वालों पर आ जाइए। जैसा कि हम करबला वालों की अगर नियाज दे रहे हैं तो, या अल्लाह, हुजूर के वसीले से करबला वालों की बारगाह में नजर करते हैं, पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। अब आपको नाम याद है तो कुछ नाम ले दीजिए, जैसे मौला अली मुश्किल कुशा, हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इनके नाम तो याद ही रहते हैं। या अल्लाह, मौला अली उस मुश्किल कुशा की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। और यूं कहते कि जितने लोग करबला में शहीद हुए, 72 शहीदान करबला की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। ये करबला वालों के नाम से नियाज हो गई। अब आप 11वीं शरीफ के दे रहे हैं तो यही तरीका रहेगा। अब करबला से थोड़ा आगे बढ़ जाएं, या अल्लाह, करबला के बाद करबला की बारगाह में आपने दुआ कर दी करबला वालों की बारगाह में। उसके बाद आपने कहना कि अल्लाह, करबला के वसीले से इस फातिहा का सवाब पीरान पीर की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। और फिर अब दुआ लंबी हो जाएगी, अगर आपको लंबा करना है तो इस तरह कहते हैं, ये अल्लाह, पीरान पीर के जो वालिदैन करीमैन हैं उनकी बारगाह में भी पेश करते हैं, कबूल फरमा। ये अल्लाह, पीरान पीर के जितने मुरीद हैं, मुरीदीन हैं, चाहने वाले हैं, सबकी बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। अगर आप नियाज दे रहे हैं 6ठी शरीफ की, ख्वाजा गरीब नवाज की, तो और नीचे आ जाएं, बोलने लग जाएं इस तरह कि अल्लाह, पीरान पीर के वसीले से हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली सरकार गरीब नवाज की बारगाह में नज़र करते हैं, मौला कबूल फरमा। और बढ़ा दे आगे, अगर आपको लंबी दुआ करनी है तो हुजूर गरीब नवाज के जितने मुरीदीन हैं, तमाम मुरीदीन की बारगाह में नज़र है, मौला कबूल फरमा। हुजूर गरीब नवाज के जितने चाहने वाले हैं, तमाम चाहने वालों की बारगाह में नज़र है, मौला कबूल फरमा। इसी तरह आप जिसकी नियाज दे रहे होंगे उस तरह आपको आते चले जाना है। यानी आप अगर ईद मिलादुन नबी पर नियाज दे रहे हैं तो बिलखुसूस तो आपको हुजूर पाक की बारगाह में नजर करना है। फिर हुजूर पाक के वसीले से आप जिस तरह अभी तक हम नाम लेते गए सबकी बारगाह में नजर करते जाएं, है ना। अब इसी तरीके से आप जो हैं आला हजरत की नियाज दे रहे हैं या किसी और वली की या बुजुर्ग की नियाज दे रहे हैं तो आप उनका नाम लें। गरीब नवाज का नाम लेने के बाद
किसी भी बुज़ुर्ग का नाम ले लिया, अल्लाह गरीब नवाज सरकार के वसीले से मदार साहब की बारगाह में नज़र है, हुजूर आला हज़रत की बारगाह में नज़र करते हैं, या महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में नज़र करते हैं। अगर इन बुजुर्गान दीन के अलावा अगर हम अपने घर के दादा या कोई मरहूम या कोई इंतकाल कर चुका उसकी न्याज दे रहे हैं, या कोई मरहूमा इंतकाल कर चुकी उनकी न्याज दे रहे हैं, तो किस तरह, इसी तरह देना जिस तरह हम पढ़ते आ रहे हैं, गरीब नवाज तक पहुंच गए, उसके बाद किसी और वली की बारगाह में नज़र कर रहे हैं, उनके बाद हमें क्या करना है कि अल्लाह इन सारे वलियों की बारगाह के सदके से जिस मरहूम की फातिहा के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ, जिस मरहूम की फातिहा के लिए हम तमाम लोग हाजिर हुए, मरहूम फला नाम जो भी है वो फला फला की बारगाह में इसका सवाब अता फरमा। जो कुछ भी तिलावत किया, जो कुछ भी कलाम पढ़ा, दुरूद पढ़ा, इन तमाम सारी चीज़ों का सवाब हुजूर पाक के वसीले से, अंबिया के वसीले से, बुजुर्गान दीन के वसीले से, गरीब नवाज के वसीले से, इन तमाम सारी चीज़ों का सवाब फ़लाँ मरहूम की कब्र में पहुँच जाए। या अल्लाह फ़लाँ मरहूम के हक़ में अता फ़रमा, फ़लाँ मरहूम की रूह को अता फ़रमा। इस तरह दुआ कर दें और उस मरहूम के लिए आप अपनी तरफ से दुआ कर दें कि अल्लाह हमने नज़र न्याज की इस मरहूम के लिए, इस मरहूम के हक़ में कबूल फ़रमा ले। फातिहा की बरकत से मरहूम की कब्र में अगर कोई अजाब हो तो उसको दूर फरमा दे। मरहूम ने दुनिया में रहकर जो गुनाह किए उनको माफ़ फरमा दे। मरहूम की कब्र में नूर की रोशनी अता फरमा दे। मरहूम की कब्र में खाना अता फरमा दे। मरहूम की कब्र में जन्नती ग़िज़ा, जन्नती लिबास, मरहूम की कब्र में जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा दे। इस तरह वगैरह वगैरह आपको अपनी तरफ से खुद दुआएं कर देना है मरहूम के हक़ में। और अगर अपने घर में न्याज दे रहे हैं या किसी के घर में न्याज दे रहे हैं तो उस तरीके से आप दुआ करते कि अल्लाह लास्ट में, अल्लाह इन लोगों ने न्याज करवाई, इनके घर की परेशानी को दूर अता फरमा दे, इनके घर से बलाओं को दूर अता फरमा दे, इनको दीन और नमाज कुरान को समझने की तौफीक अता फरमा दे। इस तरह आपने दुआ करनी है। उसके बाद आप जो हैं बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर अपनी फातिहा को मुकम्मल कर दें। इस तरह जो है आप जितना नाम लेते जाएंगे, बख्शते जाएंगे, दुआ करते जाएंगे तो तरीका जो है लंबा होता चला जाएगा। और ये जो है सबसे आसान तरीका है, जो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस तरह समझ में ना आए तो कुछ चीज़ें आप जो है कापी पर नोट कर लीजिए, ताकि आपको सही मायने में सही तरीके से फातिहा देने का तरीका आ जाएगा। और ये तरीका जो है हर कोई इस तरीक़ों को अमल में ला सकता है। ऐसा नहीं है अगर कोई हाफिज़ आलिम नहीं है तो आप फातिहा के लिए परेशान हो रहे हैं, आप खुद फातिहा दे सकते हैं। और आपको सीखना भी चाहिए, क्योंकि फातिहा जो है हर आदमी को सीखनी चाहिए, ताकि हम किसी के मोहताज ना रहें। अगर कोई हाफिज़ आलिम है तो अच्छी बात है, उसूल बरकत के लिए आप मस्जिद के इमाम या हाफिज़ आलिम से दिलाएं। लेकिन अगर कोई नहीं है तो हम खुद फातिहा पढ़ सकें और ख़ुद भी सवाब के हकदार बने, और जो है अपने मरहूम के लिए भी ईसाले सवाब कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको तरीका जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल ओनली इस्लामिक टॉपिक को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप हमारी वीडियो के ज़रिए इस नॉलेज को हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।